Hi guys, welcome again to our YouTube channel Streamline Education. I am Chetan and today we are going to see the solved examples from the chapter Gravitation. Before solving these examples, you should remember certain formulas such as the formulas of Newton's laws of motion. Then you should also remember universal law of gravitation, okay? And you should remember certain basic formulas of motion such as acceleration and velocity. And you should be very much clear with the concepts that were included in the chapter Gravitation. And all these concepts I have explained it very thoroughly in my previous videos, so please do refer those videos so that you can understand the problems very nicely. Before solving these problems, we should know certain formulas that I am going to write down here, and please note it down for your further reference. First, you should know Newton's three equations of motion. First equation of motion is V equals to U plus AT. Second equation of motion is S equals to UT plus half AT square. Then third equation of motion is V square equals to U square plus 2AS, where V stands for final velocity, U stands for initial velocity, V stands for final velocity, U stands for initial velocity, S stands for displacement or distance covered, S stands for displacement or distance covered. If there is height mentioned in that problem, then that height is nothing but the distance. Then what is remaining? A is acceleration and T is time in seconds. T is time in seconds. These formulas should be learned by heart so that you will find the problems very easy while you are solving it. Then the next formula that you should know is Newton's universal law of gravitation. Okay, तो gravitational force का formula हमने देखा था F equals to G m1 m2 upon r square, where m1 and m2 are two objects. m1 and m2 are the masses of two objects. These are the masses of two objects which are kept at a distance r from each other. Okay, which are kept at a distance r from each other. Then according to Newton's universal law of gravitation, the force acting between these objects is directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the square of the distance between them. So हमारा formula था F equals to G m1 m2 upon r square. So product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. तो ये formulas थी जो हमने इस chapter में बहुत important है. और जो important है, what is the formula for acceleration? Acceleration is V minus U upon T, final velocity minus initial velocity upon T. और एक formula that you should remember is force equals to mass into acceleration. और A कब लेना है और G कब लेना है. और एक formula होता है F equals to mass into G. Now when you are taking G, it is acceleration due to gravity. And this is normal acceleration which can be due to any change in velocity. यहाँ पे जो होने वाला है acceleration, that is due to the gravitational force only, and therefore we are going to take here G. तो ये सब formulas याद रखना है. अगर मुझे इस formula का use करना है F equals to mass into acceleration. Okay, then I can find acceleration how? By moving this m to the left hand side, that is F upon m. So you can use the formula in many ways to find out the different entities. Now let us solve the first problem. These are the problems given on the page number 6 of your textbook. Let us see them. Mahendra and Virat are sitting at a distance of 1 meter. So let us say that this is Mahendra and this is Virat. And they are sitting at a distance of 1 meter from each other. Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. यानी कि महेंद्र का मास है 75 kg and विराट का मास है 80 kg. What is the gravitational force between them? So Newton had given us the universal law of gravitation, जिसमें उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था
F equals to G m1 m2 upon r square. तो इसके पहले ये सॉल्व करने के पहले हम पहले लिखेंगे व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन. सो लेट अस राइट डाउन व्हाट इज गिवन. फर्स्ट थिंग इज मास ऑफ महेंद्र. Mass of Mahindra, we will take it as m1 and that is equal to 75 kg. Then we will write mass of Virat. Let it be m2 and that is equal to 80 kg. Then the distance between these two have been given and we take the distance as r and r equals to 1 meter. Now we are going to use the formula F equals to G m1 m2 upon r square. So you should know the value of G also. In the book it is already given, but you should learn it. Okay, the value of G. G stands for universal gravitational constant, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. So remember this value. Now we got this information. Now we can use the formula, and the formula was given by Newton. So let us write it. According to Newton's law. According to Newton's law. Which law? Universal law of gravitation. We know that F equals to G m1 m2 upon r square. Okay, हमने क्या पढ़ा था लॉ में कि the force of gravitation is directly proportional to the product of their masses, यानी कि इसका और इसका मास का जो होगा उसका प्रोडक्ट होगा, and inversely proportional to the square of the distance between them. तो F will become G के जगह पे उसकी वैल्यू डाल दो, that is 6.67 into 10 to the power minus 11. Then m1 is mass of Mahindra, that is 75, and m2 is the mass of Virat, that is 80, and this whole is divided by r square. R is the distance between both of them, and that means 1 का whole square. चलो अभी इनको सॉल्व करेंगे. F equals to, पहले हम 75, 80 और 6.67 को साथ में डालेंगे. 6.67 into 75 into 80 and into 10 to the power minus 11. अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो मुझे अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है. तो अब देखो हम ये दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 75 into 80. तो 6.67, फर्स्ट I will multiply 75 with 8 and then add 0 to it. 8 5s are 40, 4 carry, 8 7s are 56, 56 plus 4 is 60, और ये बचा हुआ 0, यानी कितना आया 6000 into 10 to the power minus 11. चलो अभी ये 6000 है, उसको हम कोई और तरीके से लिख सकते हैं. हाँ, उसको लिख सकते हैं 6 into 10 to the power 3. Why? Because 10 to the power 3 is nothing but 1000, and 1000 multiplied by 6 is again 6000. Okay, so I can write here F equals to 6.67 into 6 into 10 to the power 3. Okay, 10 to the power 3 is 1000, and 1000 into 6 is again 6000, and into 10 to the power minus 11. अब ये क्यों किया, 10 के फॉर्म में क्यों लाया, क्योंकि यहाँ पे भी 10 के फॉर्म में कुछ वैल्यू है, 10 to the power something है. When you multiply, the powers get added, and when you divide, the powers get subtracted when the bases are same. तो यही रूल यहाँ पे अप्लाई करना है. यहाँ पे साइड में सॉल्व कर देता हूं मैं. ओके, अब देखो 6.67 into 6 वैसे लिखूंगा, F equals to 6.67 into 6. अब देखो 10 to the power 3 into 10 to the power minus 11 है, 10 to the power 3 into 10 to the power minus 11 है. When you multiply, the powers get added, so it will become 3 plus minus 11. अब प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि 11 को पहले से माइनस साइन है. तो इट विल बिकम 10 to the power 3 plus into minus is minus and 11. So it will become 10 to the power 11 में से 3 गए 8, लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज माइनस, सो इट विल बिकम -8. तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 6.67 into 6 into 10 to the power -8. चलो ये वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 6 7s are 42, 4 कैरी, 6 6s are 36, 36 plus 4 is 40,
then 4 carry, 6 6 are 36 plus 4 is 40, and decimal should be given after 2 digits क्योंकि यहाँ पे भी decimal after 2 digits है, तो ये बन जाएगा 40.02, और अभी बचा क्या है, into 10 to the power minus 8. अब there is a standard way of writing the answers. Okay, standard way of writing the answers में जो डेसिमल होता है वो हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, लेफ्ट हैंड साइड से पहले डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए. तो अगर मुझे डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है तो मुझे उसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, यानी कि 40.02 डिवाइडेड बाय 10. अब मैंने जबरदस्ती 10 से क्यों डिवाइड किया? देखो, कोई भी नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0.5, यानी कि डेसिमल के पहले, ये डिजिट के पहले डेसिमल आ गया. अगर रहेगा 200 या 256 डिवाइडेड बाय 10 तो इसका आंसर क्या होगा, 25.6, यानी डेसिमल एक डिजिट के पहले आना शुरू हो जाएगा. अब मुझे यहां शिफ्ट करना है तो मैंने भी उसको 10 से डिवाइड कर दिया. जबरदस्ती 10 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी 10 से कर दूंगा. क्यों? क्योंकि ये दो फिर से कैंसिल हो जाएंगे और ओरिजिनल इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा. ओके, सो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. चलो अभी क्या करना है, 40.02 इंटू 10 एंड अपॉन 10 है तो पहले हम डिवीजन कैरी आउट करेंगे इसमें. सो 1 से डेसिमल लेफ्ट पे हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, 4.002 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. ये मैंने पहले डिवीजन कैरी आउट किया तो डेसिमल 1 से लेफ्ट हैंड साइड को चला गया. तो f इक्वल्स टू, अब देखो क्या होगा, 4.002 इंटू मल्टीप्लीकेशन है, पावर्स विल गेट एडेड, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका पावर कितना रहेगा, 1. तो अभी यहां पे देखो ये क्या है, 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, यानी ये बनेगा 10 टू द पावर 1 प्लस माइनस 8, यानी कि 10 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 1 माइनस 8 एंड 1 माइनस 8 इज माइनस 7. तो इसका आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7. अब फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन, तो आगे लिख देना न्यूटन. सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कैसे करना है. अब एक चीज और एक जो मैं बताना चाहता हूं, अभी शॉर्टकट में एक चीज याद रखना है कि अगर कोई नंबर है, समझो 2.286.73 इंटू 10 टू द पावर 6, ऐसा कोई नंबर दिया है. ओके, 286.73 इंटू 10 टू द पावर 6. हमको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल शुड बी आफ्टर द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. तो मुझे अब कितने डेसिमल से, कितने डिजिट से लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है. अभी डेसिमल यहां है तो मुझे इसको क्रॉस करके यानी 2 डिजिट्स को छोड़ के जाना है लेफ्ट हैंड साइड पे. तो डायरेक्टली इसके पावर में 2 ऐड कर देना, डायरेक्टली इसके पावर में 2 ऐड कर देना. लेफ्ट पे जा रहे हैं तो जितने से लेफ्ट पे जा रहे हो, जितने प्लेसेस से लेफ्ट पे जा रहे हो उतने यहां पे ऐड कर देना. अब मैं 2 डिजिट से यहां पे जाऊंगा, 2.8673, तो मैं यहां पे 6 में 2 ऐड कर दूंगा, दैट इज 8. अगर मैं राइट हैंड साइड पे जा रहा हूं, ओके, इफ आई एम गोइंग टू द राइट हैंड साइड, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा. समझो अभी मुझे लिखना है, ये पॉइंट को मुझे 73 के बाद में लिखना है. ओके, 0.73 के बाद में, तो मैं लिखूंगा 28673. अब कितने से राइट में गया, 2 प्लेसेस से राइट में गया, तो उतने इसमें से माइनस हो जाएंगे. राइट में गए तो माइनस, लेफ्ट में गए तो प्लस. सो इनटू 10 टू द पावर, अभी इसमें 6 था तो 6 में से 2 चले जाएंगे, बिकॉज आई हैव मूव्ड 2 प्लेसेस टू द राइट, and it will become 28673 into 10 to the power 4. So this is how you have to solve the question. अब इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है, चलो वो देखते हैं. पहले मैं ये रब कर देता हूं. Now let us solve the example 2 which is related to the first one. Assuming the bench on which Mahendra is sitting is frictionless. Okay, यानी कि महेंद्र, और फिर से डायग्राम उतार लेते हैं, ये महेंद्र है और ये है विराट, एंड दे आर सिटिंग ऑन अ बेंच. बेंच पे दोनों बैठे, और ये जो बेंच है दैट इज फ्रिक्शनलेस. ओके, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल भी उनमें नहीं रहेगा, आराम से दोनों स्लाइड कर जाएंगे बेंच के ऊपर से. ओके,
So assuming the bench on which Mahindra is sitting is frictionless, starting with zero velocity, what will be Mahindra's velocity of motion towards Virat after 1 second? Okay, तो क्या फाइंड आउट करना है हमको? अब महेंद्र जो है और विराट जो है उनके अंदर उनके बीच में कौन सा फोर्स है? इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? अपने पास में दूसरी चीजों को खींचता है। तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स महेंद्र विराट की तरफ जाएगा और विराट भी महेंद्र की तरफ खींचा जाएगा। ओके, अब दोनों में से मास किसका ज्यादा है? मास विराट का ज्यादा है, तो विराट महेंद्र को ज्यादा फोर्स से खींचेगा, बिकॉज वी नो दैट मास की वजह से ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जिसका ज्यादा मास उसका ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वैसे तो दोनों एक दूसरे को खींचने वाले हैं, लेकिन हम अब कंसीडर करेंगे कि महेंद्र विराट की तरफ खींचा जा रहा है। ओके, और जब वो खींचा जाएगा तो ऑब्वियसली उन दोनों में का डिस्टेंस कम होता जाएगा। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन देम विल रिड्यूस एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल अगेन इंक्रीज। क्या हो जाएगा? जब डिस्टेंस डिक्रीज होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ज्यादा बढ़ते जाता है। तो ऑब्वियसली महेंद्र की वेलोसिटी पहले वो रेस्ट पे था तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, धीरे धीरे वो खींचा जाएगा तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और डिस्टेंस दोनों में का कम हो रहा है तो ये वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ते जाएगी। अब वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ने वाला है। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले लिखना है गिवन थिंग्स। याद रखना है कि फाइंड क्या करना है। वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंडीशन कि महेंद्र स्लाइड हो रहा है, घसर रहा है टुवर्ड्स विराट, और पहले उसका पोजीशन स्टेबल था, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा था, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होने वाली है। धीरे धीरे स्लाइड करने के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यहां पे हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ महेंद्र। ओके, महेंद्रस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज 0 बिकॉज he was at rest at the start। पहले वो रेस्ट पे था, फिर धीरे धीरे खींचता गया। So Mahendra's initial velocity, that is u, is equal to 0। We have to find Mahendra's velocity of motion, यानी v find out करना है। Okay, अब इसमें पहले प्रॉब्लम से हमको जो एक इंफॉर्मेशन मिला था, that is the gravitational force acting between these two। Okay, gravitational force हमको कितना मिला था between Mahendra and Virat? That is 4.002 into 10 to the power minus 7 Newton। 10 to the power minus 7 Newton। ये हमको फर्स्ट प्रॉब्लम से मिला था कि ये फोर्स दोनों में कितना है करके। अब एक चीज याद रखनी है कि विराट महेंद्र को यही फोर्स से खींचेगा, इतनी वैल्यू से खींचेगा, और महेंद्र भी विराट को सेम फोर्स से अपने पास खींचेगा। अब और क्या दिया था उसमें? और हमको मिला था महेंद्रस इनिशियल वेलोसिटी। अब हमको फाइंड आउट करना है और वेलोसिटी ऑफ महेंद्र आफ्टर 1 सेकेंड। ओके, तो टाइम दिया है 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के बाद हमको महेंद्र की वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने देखे थे। पहला इक्वेशन था v इक्वल्स टू u प्लस 80। फिर से लिख रहा हूं, v इक्वल्स टू u प्लस 80। नाउ हमको फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। देखो, v हमको फाइंड आउट करना है तो इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। देन एक्सेलरेशन जो है वो भी हमको पता नहीं है, तो ऑब्वियसली देयर आर 2 अननोन वेरिएबल्स, तो ये इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते। सेकेंड इक्वेशन लेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब ये इक्वेशन भी चेक कर लो। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है महेंद्र का दिया नहीं है, तो ये भी हमको पता नहीं है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमको पता नहीं है, तो ये इक्वेशन भी हम यूज नहीं कर सकते। और थर्ड इक्वेशन दिया है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें भी v की वैल्यू मालूम नहीं और a की वैल्यू मालूम नहीं, इसका मतलब ये भी इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते। अब तीनों इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब देखो इसमें क्या क्या दिया है। फोर्स दिया है, ओके, देन मास ऑफ महेंद्र भी दिया होगा। मास ऑफ महेंद्र कितना था? 75 kg। ओके, तो अब एक चीज हमको बहुत आसानी से मिल जाती है, हमारे पास एफ भी है और एम भी है। हमको फोर्स का फॉर्मूला मालूम है। ओके, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमको फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास। फोर्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज
4.002 into 10 to the power minus 7 और मास ऑफ महेंद्र कितना है? मास ऑफ महेंद्र इज 75 kg एंड इनटू 8। इससे हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगी। सो लेट अस फाइंड आउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन विल बी 4.002 into 10 to the power minus 7 upon 75। ओके, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब अगर मुझे ये डेसिमल को 3 डिजिट से आगे ढकलना है, ओके, 3 डिजिट से आगे ढकलना है, तो मैंने बोला था अगर राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो 10 का जो पावर है उसमें से उतने प्लेसेस माइनस कर देना। 3 डिजिट से राइट में जा रहा है तो हम इसमें करेंगे -3। चलो देखते हैं। सो 3 डिजिट से मैं डेसिमल को लेके चला गया, यानी डेसिमल निकाल ही दिया मैंने, तो ये बनेगा 4002 अपॉन 75 इंटू 10 टू द पावर -7। कितने प्लेसेस से राइट पे गया? 3 प्लेसेस से, तो मैं कितने माइनस करूंगा इसमें से? -3। जो भी 10 टू द पावर रहेगा उसमें से मैं -3 कर दूंगा। ओके, तो अब ये क्या बन गया? 4002 डिवाइडेड बाय 75। तो अभी 4002 को 75 से डिवाइड करते हैं, 4002 को डिवाइड करते हैं 75 से। चलो 75 5 से लेके देखेंगे या 6 से लेके देखते हैं। 75 इंटू 6, 6 5 30, 3 कैरी, 6 7 42। ये इसके आगे चला गया तो 6 नहीं आएगा। 75 इंटू 5 करके देखते हैं। 5 5 25, 2 कैरी, 5 7 35 प्लस 2 37, तो आ गया 375। तो 75 5 375। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 3 में से 3 गए 0। अब 2 को नीचे लाते हैं। अब 75 इंटू 4 करके देखो। 4 5 20, 2 कैरी, 4 7 28 प्लस 2 300। सो इससे कम लेना पड़ेगा 75 इंटू 3। सो 3 5 is 15, 1 carry, 3 7 21 plus 1 20। So 75 into 3 is 225। अब सब्ट्रैक्ट कर लो। 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2 एंड 2 में से 2 गए 0। अब डिजिट खत्म हो गए तो आएगा डेसिमल पॉइंट और 27 क्या आएगा? 0। अब फिर से देख लो। 75 इंटू 3 कितना आया था? 225। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे 3 225। अब कितना आता है? 10 में से 5 गया 5, देन 6 में से 2 गया 4 एंड 0। अब 45 के आगे और एक 0 लेते हैं, 2 डेसिमल तक निकालेंगे। 75 इंटू कितना लिया जाए? 75 इंटू 6 करके देखते हैं। 6 5 30, 6 7 42 प्लस 3 45। ओके, तो डायरेक्ट आंसर ही मिल गया। 75 इंटू 6 इज 450, तो रिमाइंडर हो गया 0। चलो, तो 4002 को हमने 75 से डिवाइड किया तो यू गेट 53.36। 53.36। अब ये है 10 टू द पावर -7 -3, माइनस माइनस है दोनों, तो एडिशन हो जाएगा लेकिन साइन माइनस रहेगी, यानी कि 10 टू द पावर -10। ओके, लेकिन अभी भी स्टैंडर्ड आंसर आया क्या? नहीं, हमको आंसर चाहिए, हमको डेसिमल जो चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट के बाद चाहिए, यानी कि 5 पॉइंट में चाहिए। तो हम अभी डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे। जितने प्लेसेस से हम मूव करेंगे लेफ्ट में जाते हो क्या करना है, उतने ही प्लेसेस 10 टू द पावर में ऐड कर देना है। तो क्या बनेगा ये? a इक्वल्स टू 5.336 इंटू 10 टू द पावर -10। लेफ्ट में गए तो प्लस, राइट में गए तो माइनस। कितने प्लेसेस से डेसिमल शिफ्ट किया? 1 से, तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा? +1। तो अभी कितना आया आंसर? a इक्वल्स टू 5.336 इंटू 10 टू द पावर -10 प्लस 1, माइनस प्लस इज माइनस, 10 में से 1 गया 9, लेकिन साइन माइनस है बड़े नंबर का, तो ये हो जाएगा -9। अब इनको 2 डिजिट तक करना है तो हम लिख सकते हैं 5.34 इंटू 10 टू द पावर -9। 5.34 क्यों लिखेंगे? क्योंकि थर्ड डिजिट 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो इसके पहले वाला डिजिट 1 से बढ़ जाएगा, तो इट विल बी 5.34 इंटू 10 टू द पावर -9। I can write that a equals to 5.34 into 10 to the power -9।
अब है एक्सेलरेशन, तो उसका यूनिट लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्या हमको एक्चुअल आंसर मिला है? नहीं, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ महेंद्र। ओके, तो आगे का पोर्शन मैंने उसी के लिए मिटा दिया है, जगह बना दी आगे सॉल्व करने के लिए। चलो अभी सॉल्व करते हैं, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। अब मैं पूछूंगा जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने देखे थे उनमें से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलो पहला इक्वेशन लिखते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। पहले चेक कर लेंगे कैन वी यूज दिस फॉर्मूला। वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ महेंद्र। डू वी नो इनिशियल वेलोसिटी? यस, वी नो इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 0. Then do we know acceleration? Yes, we have found out acceleration. And do we know time? Yes, time is already given, that is 1 second. So obviously we can use v equals to u plus at. So अभी लिखना पड़ेगा from Newton's first equation of motion. From Newton's first equation of motion. First equation of motion क्या है? v equals to u plus at. अब u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 0, क्योंकि वो रेस्ट पे था, महेंद्र वाज एट रेस्ट इनिशियली, सो u हो जाएगा 0. देन प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है? 5.34 into 10 to the power minus 9. 5.34 into 10 to the power minus 9. And into time in seconds. टाइम कितना था? टाइम इज 1 सेकेंड, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 1. सो v इक्वल्स टू 0 प्लस ये वैल्यू ऐड कर देना है, तो ऑब्वियसली ये आंसर सेम ही रहेगा, दैट इज 5.34 into 10 to the power minus 9. ओके, अब वेलोसिटी है तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा? इट विल बी मीटर्स पर सेकेंड. ओके, दिस इज द वेलोसिटी विथ विच महेंद्र इज मूविंग टुवर्ड्स विराट. अब देखो ये कितना कम वैल्यू है, 10 to the power minus 9. ओके, यानी 5.34 डिवाइडेड बाय 9 zeros of 10. ओके, यानी 1 के आगे 9 zeros रहेंगे, 5.34 उससे डिवाइड होगा, तो इमेजिन द वैल्यू ऑफ द फोर्स. इट इज वेरी 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 लेस फोर्स बिटवीन देम. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ v 5.34 into 10 to the power minus 9 meters per second. लेकिन और एक क्वेश्चन पूछा है, will this velocity change with time and how? Okay, obviously the velocity is going to change with time, क्योंकि the distance between Mahendra and Virat is gradually going to decrease, and when the distance gradually decreases, the power of gravitation or the gravitational force goes on increasing. When the gravitational force increases, the velocity of Mahendra will also increase, and therefore the acceleration is also going to increase. Why? Because Virat इस डायरेक्शन में उसको खींच रहा है और महेंद्र भी उसी डायरेक्शन में खींचे जा रहा है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम रहेगा, तो जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ने वाला है. चलो ये था आंसर. अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन पेज नंबर 7. रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो पहले दो प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे उससे ही रिलेटेड है. इसमें भी क्या करना है? कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्र. ओके, महेंद्र के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन इस बार अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है. पहला जो हमने फोर्स फाइंड आउट किया था, इट वाज बिटवीन विराट एंड महेंद्र, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, पहले जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था, इट वाज बिटवीन whom? इट वाज बिटवीन महेंद्र एंड विराट. ओके, पहले का जो फोर्स था महेंद्र और विराट के बीच में का फोर्स था जो हमने निकाला था. अभी समझो ये अर्थ है, तो हमको निकालना है कि महेंद्र के ऊपर अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने वाली है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. अब अर्थ इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, इसके लिए हमको क्या क्या पता रहना चाहिए. हम पहले तो महेंद्र को और विराट को ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे रखेंगे. ठीक है, तो अब महेंद्र जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल महेंद्र का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट विल बी नथिंग बट r. ओके, व्हाई? Because the gravitation is always towards the center of the earth, and therefore r will be equal to the radius of the earth. यहाँ पे r जो है distance between Mahendra and center of the earth, that will be r. Okay. अब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द अर्थ. तो अर्थ का हमको मास भी पता होना चाहिए और अर्थ का हमको रेडियस भी पता होना चाहिए.
सो फर्स्ट लेट अस राइट डाउन द गिवन थिंग्स। ये मोस्टली आपको दिया रहेगा, लेकिन अच्छा है कि आप इनके वैल्यूज लर्न कर लो। कौन से वैल्यूज? अर्थ का जो रेडियस है और अर्थ का जो मास है, इनके वैल्यूज लर्न कर ले। चलो अभी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लेट अस राइट डाउन द गिवन थिंग्स। अभी आइडिया क्लियर कर लो कि ये अर्थ है, ओके, दिस इज अर्थ। अर्थ के ऊपर यहाँ पे महेंद्र है, ओके। तो महेंद्र और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स है, यानी कि अर्थ कितना फोर्स महेंद्र पे लगा रहे हैं, वो फाइंड आउट करना है। चलो अभी इससे रिलेटेड वैल्यूज लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे मास ऑफ अर्थ, ओके। मास ऑफ अर्थ कितना होता है? इट इज 6.4 into 10 to the power 24 kg. Okay, 6 into 10 to the power 24 kg. And radius of Earth is 6.4 into 10 to the power 6 meters. Okay, ये दो वैल्यूज लर्न करने हैं। That is mass of Earth is 6 into 10 to the power 24 kg and radius of Earth is 6.4 into 10 to the power 6 meters. अब mass of छोटा m लेंगे हम, mass of किसके लिए? महेंद्र के लिए। That is mass of महेंद्र and that is equal to how much? 75 kg. Okay, पहले प्रॉब्लम में दिया है mass of महेंद्र is 75 kg. Then universal gravitational constant, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहती है, 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. Now we have to find the force of gravitation, जो किस पे लगने वाला है? महेंद्र के ऊपर. According to Newton's law, again universal law of gravitation, according to Newton's universal law of gravitation, we know that F equals to G m1 m2 upon r square. Okay, m1 m2 upon r square. अब G की वैल्यू लिख लो। G is 6.67 into 10 to the power -11. m1 जो है इस केस में रहेगा मास ऑफ अर्थ, तो मैं यहाँ पे m1 की जगह लिखता हूँ मास ऑफ अर्थ, ओके। और m2 की जगह हम लिखेंगे m, दैट इज मास ऑफ महेंद्र, ओके। सिर्फ नाम चेंज कर दिए, बाकी कुछ चेंज नहीं किया इसमें, ओके। जो इससे नोटिफाई किया था, नोटेशंस जो थे उनको ही चेंज किया है, बाकी फॉर्मूला इज सेम। या तो आप बोल सकते हैं m1 इज द मास ऑफ द अर्थ एंड m2 इज द मास ऑफ महेंद्र। सिंपल वे, m1 इज मास ऑफ अर्थ एंड m2 इज मास ऑफ महेंद्र। तो यहाँ पे m2 कर देना और यहाँ पे m1 कर देना, ओके। मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ महेंद्र। चलो m1 इज मास ऑफ अर्थ, दैट इज 6 into 10 to the power 24 kg, ओके। अब m2 इज मास ऑफ महेंद्र, दैट इज 75 and this divided by r square. R is the radius of the earth, that is 6.4 into 10 to the power 6, okay, लेकिन उसका क्या होने वाला है? स्क्वायर। सो आधे बच्चे तो ये कैलकुलेशन देख के घबरा जाएंगे, लेकिन उनको स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करोगे तो आसान जाएगा, ओके। अब इनको सॉल्व कैसे करना है मैं पहले मेरे वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन आई विल रिपीट इट वंस अगेन। 10 वाले वैल्यूज एक साइड पे कर देना पहले, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? 6.67 इंटू ये 6 ले लो, इंटू ये 75 ले लो, इंटू 10 to the power -11 इंटू 10 to the power 24, ओके। और इसके बाद है 6.4 इंटू 10 to the power 6 का होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट में होल ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, ओके। यानी कि 6.4 का स्क्वायर इंटू 10 to the power 6 का स्क्वायर। 10 to the power 6 का स्क्वायर क्या होता है? इनके जो पावर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि 10 to the power 12 हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 to the power 12, ओके। 6.4 का स्क्वायर एंड 10 to the power 6 का होल स्क्वायर, यानी 10 to the power 12। चलो इतनी चीजें मिल गई। अब 10 वाली चीजें, 10 वाले जो है नंबर्स, उनको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। व्हेन यू मल्टीप्लाई द पावर्स गेट एडेड, तो यहाँ पे है 10 to the power -11 into 10 to the power 24। पावर से -11 and 24 they will get added, तो ये बनेगा 10 to the power -11 plus 24। तो 24 minus 11 कितना होता है? 13, तो ये बनेगा 10 to the power 13। पॉजिटिव साइन रहेगी क्योंकि बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है, ओके। तो ये आ जाएगा आंसर 6.67
अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को। 6 5 are 30, 6 into 5 is 30, 3 carry, 6 7 is 42, 42 plus 3 is 45. ओके, अब इन दोनों का तो हम कर चुके हैं, उसका आंसर आया 10 to the power 30. अब इसके बाद है 6.4 का होल स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर कर लो। 6.4 into 6.4, 4 4s are 16, 1 carry, 4 6 are 24 plus 1 25, 0, 6 4s are 24, 2 carry, 6 6 are 36 plus 2 38. तो ये बन गया 6, ये 9, ये 10 और 4096। तो यहाँ पे आएगा 4096, लेकिन ये 6.4 था। ओके, तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद? यहाँ पे 1 के बाद, यहाँ पे 1 के बाद, यानी टोटल 2 के बाद, यानी 2 के बाद डेसिमल आएगा, तो इट विल बिकम 40.96। अब बचा हुआ है इनटू 10 to the power 12। चलो अभी और एक चीज याद रखनी है कि व्हेन यू डिवाइड द पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड। बेसिस सेम है तो उनके जो पावर्स है वो डिवीजन के टाइम पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी कैसे? समझो a to the power 10 है अपॉन a to the power 6 है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? a और सिर्फ पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाला, यानी 10 minus 6। तो सेम चीज यहाँ पे करनी है। अगेन ये क्या आएगा? 6.67 इंटू 450 इंटू, मैं ये छोड़ देता हूँ, ये हमको साथ में सॉल्व करना है, अपॉन 40.96। चलो अब 10 to the power 13 divided by 10 to the power 12, powers will get subtracted, so क्या आएगा? 10 to the power 13 minus 12, तो 13 minus 12 is 1, यानी कि बचेगा 10 to the power 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा into 10। चलो अब इसको आगे करते हैं, मैं रफ कर देता हूँ, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम। सो कैलकुलेशन में घबराना नहीं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करोगे तो वो इजी जाने वाला है। चलो अभी मल्टीप्लिकेशन में, अभी सेकंड मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 450 मल्टीप्लाइड बाय 6.67। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले इक्वेशन फिर से, 6.67 इंटू 450 इंटू 10 अपॉन 40.96। ओके, कैलकुलेशन लंबे है लेकिन मल्टीप्लिकेशन आता है तो आसान रहेगा। We will multiply 450 by 6.67। चलो 7 zeros are 0, 7 5s are 35, 3 carry, 7 4s are 28, 28 plus 3 is 31, then 0, 6 zeros are 0, 6 5s are 30, again 3 carry, 6 4s are 24 plus 3 27, 2 zeros, 6 zeros are 0, 6 5s are 30, again 3 carry, 6 4s are 24 plus 3 27। तो इतना मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, 7 plus 3 is 10, 1 carry, 7 plus 2 9 plus 1 10 और फिर 1 and you get this। Now decimal after how many digits? 2 digits, तो ये बनेगा 3001.50। ओके, ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो we got 3001.50 into 10 अपॉन 40.96। अब 3001.50 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सिर्फ इसके आगे 0 चला जाएगा, दैट इज 300150। ये तो एक्चुअल वैल्यू है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो और एक 0 ऐड हो जाएगा, लेकिन डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो ये बनेगा 3050। तो अभी क्या मिला हमको? 3015 डिवाइडेड बाय 40.96। ओके, अब डिवीजन अगर पॉइंट्स में है तो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो डेसिमल पॉइंट निकाल लो। तो डेसिमल पॉइंट निकालना है तो ऊपर कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? अब यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट के पहले है तो यहाँ पे 2 जीरो हमको लगाना पड़ेगा। सो दिस विल बी 300150, क्योंकि 2 डिजिट के बाद है डेसिमल पॉइंट, एंड दिस विल बी 4096। अगर ये 3 डिजिट के बाद होता तो हम ऊपर 3 जीरोस लगा देते थे। ओके, चलो अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3001500 डिवाइडेड बाय 4096। 3001500 डिवाइडेड बाय 4096। तो यहाँ पे थोड़ा अंदाजा लगा लेना, ये 4000 के रेंज में,
और ये लेंगे तो 3000 है, तो 3000 तो डिवाइड नहीं होने वाला है, तो उसके आगे और एक नंबर ऐड कर देंगे। हाँ, तो अभी ये क्या बन गया, अप्रोक्सीमेटली 30,000 है और ये है 4000। ओके, तो 4000 और 30,000 है। ओके, 4000 है और 30,000 है। तो एक अंदाजा लगा लेना कि अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 28,000। अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, जो कि इसके आगे निकल जाएगा। तो चलो अभी 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 4096 इंटू 7, 7 6 42, 4 कैरी, 7 9 63, 63 plus 4 is 67, 6 carry, 7 0 0, then 6 and 7 4 28। तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। ओके, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 28672, 28672। अब 5 में से 2 गए 3, ओके, 11 में से 7 गए 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1 एंड 2 में से 2 गया 0। चलो अब ये हो गया, अभी ये 0 नीचे आ जाएगा तो ये बनेगा 13,430। अब अंदाजा लगा लो, ये 13,000 है या 4,000 है। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 4,000 को तो 12,000 आएगा, तो इसके रेंज में आ जाएगा। चलो देखते हैं, 4096 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 6 18, 1 कैरी, 3 9 27, 27 plus 1 28, 2 कैरी, 3 0 0, 2 and 3 4 12। देखो 12,288 और ये 13,000 है तो ये भी आ जाएगा। 3 12,288 माइनस करते हैं, 10 में से 8 गए 2, ओके, 12 में से 8 गए 4, देन 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1। ओके, अब बचा और एक 0 है, 1000। अब कितना बना, 11,420। ओके, 11,420। अगर हम 3 लेंगे तो 12,000 बनेगा, तो हम 3 नहीं ले सकते, हम लेंगे 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 6 12, 1 कैरी, 2 9 18 प्लस 1 19, 1 कैरी, 2 0 0 प्लस 1 1 एंड 2 4 8। अब इसको डिडक्ट कर लो तो कितना आएगा, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 9 गया 2 एंड 3 में से 1 गए 2। ओके, अब 8 और ये आएगा अगेन 3। ओके, तो 3,228 रिमाइंडर है, डिजिट खत्म हो गए तो इसके आगे आएगा डेसिमल पॉइंट। अब आगे करना है तो आगे 0 लगाएंगे। अब 40.96 है, सॉरी नॉट 40.96, 4096 है। यह है 4,000 और यह है 32,000। अब 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, क्योंकि 8 4 is 32, तो 4096 इंटू 8 करके लिखेंगे। 8 6 48, 4 कैरी, 8 9 72, 72 plus 4 is 76, 7 कैरी, 8 0 0, 7 and 8 4 32। चलो यहाँ पे 8 तो नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, तो 7 तो आ ही जाएगा। ओके, तो 7 6 42, 4 कैरी, 7 9 63, 63 plus 4 67, 6 कैरी, 7 0 0, 6 and 7 4 20। ओके, तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये चला गया 10 में से 2 गया 8। चलो अब मैं इसके आगे नहीं करूंगा, वो आप आगे करना, अभी मैं सिर्फ ये नंबर लूंगा, दैट इज 732.7। ओके, सो यहाँ पे जो आंसर आया है 732.7। अब अगर इसको राउंड अप किया जाए तो हम ले सकते हैं कितना, 733, क्योंकि जो नंबर है 7 और 7 से ज्यादा है तो पहले वाला नंबर 8 से बढ़ जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा, 733। हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे, फोर्स, सो फोर्स इक्वल्स टू 733 न्यूटन। ओके, नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन whom, महेंद्र। ओके, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन महेंद्र इज 733 न्यूटन। तो कैलकुलेशन से घबराओ मत, कैलकुलेशन को प्रैक्टिस करो अच्छे से। ओके, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अच्छे से आना चाहिए, तो ये कैलकुलेशंस काफी इजी लगेंगे। चलो इससे रिलेटेड अभी दूसरा वाला देखते हैं। चलो अभी देखते हैं एग्जांपल 2। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, व्हाट विल बी महेंद्र's वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड इफ ही इज फॉलिंग ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अभी इमेजिन करो कि ये महेंद्र है, ठीक है,
मैंने महेंद्र को ऐसा पकड़ के रखा है और अभी मैं इसको छोड़ने वाला हूं। ओके, तो महेंद्र का अभी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, क्योंकि मैंने अभी पकड़ के रखा है। जैसे ही मैं छोड़ दूंगा तो ही विल ड्रॉप डाउन और उनका जो है वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा। ओके, सो हमको क्या ढूंढ के निकालना है कि व्हाट विल बी हिज वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, यानी कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे छोड़ने के बाद 1 सेकेंड के बाद महेंद्र की वेलोसिटी कितनी रहेगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, नाउ ही इज फॉलिंग ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ दैट वाज एक्टिंग ऑन महेंद्र, वी फाउंड आउट जस्ट नाउ, दैट वाज 733 न्यूटन। ओके, 733 न्यूटन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन महेंद्र, और ये फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है उस पे। चलो अभी गिवन थिंग्स लिख लेते हैं। व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर्स on Mahendra by earth is 733 Newton. Okay, 733 Newton. Then one more thing we know, that is mass of Mahendra. Mass of Mahendra कितना था, 75 kgs. Okay, mass of Mahendra, that is m equals to 75 kg. Then initial velocity रेस्ट पे था पहले, फिर मोशन में आ गया तो initial velocity हो गई 0, and we have to find the final velocity, but after how many second? After 1 second, and time t equals to 1 second. So this is the information that has been given, and we have to find out from this what will be the velocity of Mahendra after 1 second. अब equations of motion, you know, पहला था v equals to u plus at, right? Can we use this formula? क्या फाइनल वेलोसिटी पता है? नहीं, वही ढूंढ के निकालना है। एक्सेलरेशन पता है? नहीं पता है, तो ये फॉर्मूला में 2 अननोन वेरिएबल आ गए, तो दिस फॉर्मूला वी कैन नॉट यूज। अगेन द सेम कंडीशन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s भी नहीं पता, a भी नहीं पता, ये फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, इसमें भी 2 अननोन वेरिएबल से ये भी यूज नहीं कर सकते। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, देखो फोर्स भी है, मास भी है, और हमको निकालना है, हम इजीली एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, because we know that force equals to mass into acceleration. Force we already got कितना, 733 Newton. Mass of Mahendra is already known to us, 75, and we have to find acceleration. Okay, so acceleration कितना आएगा, 733 divided by 75. तो पहले अब 733 को डिवाइड करते हैं 75 से, 733 divided by 75. चलो इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 75 into 9, 9 5 are 45, 9 7 are 63 plus 4 67. तो 75 into 9 is 675. कितना बचेगा देखते हैं, 8, then 12 में से 7 गए तो 5. ओके, तो अब डिजिट खत्म हो गए तो आएगा डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे आएगा 0. ओके, अब 75 into 9 675 था, 75 into 8 करके देखते हैं, 8 5 are 40, 4 कैरी, 8 7 are 56, 56 plus 4 is 60, यानी कि 600 है, वो भी ज्यादा जाएगा, तो 75 multiplied by 7, 7 5 are 35, 3 कैरी, 7 7 are 49, 50 51 52, तो कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5, then 7 में से 2 गया 5, and this will be 0. अगेन एक आएगा 550, 550 हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था तो हमको मिल गया था 525, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं into 7 is 525, तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5. चलो अब इसको लिमिट करते हैं हम 2 डिजिट तक, तो हमारा एक्सेलरेशन आया 9.77. जनरली हमने 3 डिजिट तक इसको सॉल्व करना चाहिए. ओके, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको मिल गई. नाउ कैन वी यूज दिस फॉर्मूला? Yes. Why? Because we now know what is the value of acceleration, that is a. यहाँ पे लिखेंगे from Newton's first equation of motion, v equals to u plus at. हमको क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, तो t भी दिया है, टाइम इन सेकेंड्स. अब v will be इनिशियल वेलोसिटी तो हो गया 0. अब दिस इज a. अब ये हम इमेजिन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्री फॉल के टर्म्स में इमेजिन कर सकते हैं, यानी महेंद्र इज फॉलिंग ओनली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लेकिन द डायरेक्शन ऑफ फॉलिंग
and the direction of acceleration or direction of gravitational force is the same and therefore A will be positive. चलो अब A की जगह कितना आया था हमारा एक्सेलरेशन 9.77. ओके, वैसे आपको मालूम है एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारा आ गया बराबर. ठीक है, एंड इनटू t इज 1 सेकंड. ओके, सो हाउ मच यू गेट? v इक्वल्स टू 9.77 into 1, that is 9.77. So velocity is meters per second. Acceleration meters per second square. So ये आ गया आपका वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के बाद गिरने के बाद 1 सेकेंड बाद महेंद्र की वेलोसिटी रहेगी 9.77 मीटर्स पर सेकेंड. नाउ लेट अस सॉल्व द एग्जांपल ऑन पेज नंबर 10. If a person weighs 750 Newton on Earth, how much would be his weight on the moon given that moon's mass is 1/81 of that of Earth and its radius is 1/3.7 times of that of the Earth. यानी क्या दिया है कि एक इंसान है जिसका वजन अर्थ के ऊपर 750 न्यूटन है, और हमको क्या फाइंड आउट करना है कि उसी इंसान का वजन मून पे कितना होगा. वी नो वन थिंग दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून इज लेस 1/6 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द अर्थ. तो ऑब्वियसली उसी इंसान का वजन मून पे जाने के बाद कम हो जाएगा, बिकॉज वेट इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर मास ऑफ द पर्सन देखेंगे तो मास ऑफ द पर्सन डज नॉट चेंज विद द लोकेशन बिकॉज मास इज कांस्टेंट. ओके, इट डज नॉट चेंज विद लोकेशन. तो चलो अभी इस एग्जाम को सॉल्व करते हैं. पहले हमको देखना है कि वो इंसान का वजन अर्थ पे कितना है, 750 न्यूटन. ओके, न्यूटन ये यूनिट और किसी चीज का होता है, फोर्स का भी यूनिट न्यूटन होता है. तो वेट एंड फोर्स आर वन एंड द सेम थिंग. ओके, दिस इज द वेट ऑन अर्थ, which means that is nothing but the force on the earth. Okay, this is nothing but the force on earth. चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं. Let us write the given information. First is weight of the person on earth. Okay, weight of person on earth. So weight of the person on the earth is 750 Newton, and that is equal to the force on earth. It is nothing but the force on earth. Then हमको मून का मास के लिए कुछ लिखना पड़ेगा. Let us notify it with something. डिनोट करना है कुछ मून के मास के लिए. तो let mm be the mass of the moon. Okay, mm be the mass of moon. Similarly, let me be the mass of earth. Okay, mass of earth क्या हो जाएगा, m. अब रेडियस के बारे में भी दिया है, तो हम रेडियस ऑफ मून लेंगे. rm be the radius of moon. m stands for moon, here small e stands for earth. So rm be the radius of moon. Similarly, re जो रहेगा it will be the radius of earth. अब हम रेडियस क्यों ले रहे हैं? ओके, why are we taking radius of moon and radius of earth? उसका एक रीजन है. अब देखो कि जो इंसान है, समझो पहले अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है. ओके, ही इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ. नाउ वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो हमको जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. वहां पे r क्या रहता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स क्या होगा, वो पर्सन और सेंटर ऑफ द अर्थ का डिस्टेंस जो होगा वो होगा r की वैल्यू. सिमिलरली रेडियस ऑफ द मून में भी वैसा ही होगा. अगर ये मून है और पर्सन मून पे है, तो मून का जो रेडियस है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द सेंटर ऑफ द मून. ओके, तो उस टाइम पे r क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द सेंटर ऑफ द मून. चलो अब ये चीजें ले ली. अब हमको मास ऑफ द पर्सन तो दिया नहीं है, सो वी विल कंसीडर मास ऑफ द पर्सन टू बी m. मास ऑफ पर्सन बी m. ओके, m इज द मास ऑफ द पर्सन. चलो अभी क्या क्या रिलेशंस दिए हैं वो पहले देख लेते हैं और उनको इक्वेशंस में बनाते हैं. मून का मास दिया है. ओके, मून्स मास, मून्स के मास को हमने डिनोट किया है बाय mm. तो हम लिख सकते हैं नाउ मून का जो मास है इट इज 1/81 टाइम्स of the mass of earth.
ओके, ऑफ द मास ऑफ अर्थ। चलो अब हमको अगर दोनों के मासेस का रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, रेशियो इज नथिंग बट वन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय अनदर क्वांटिटी। तो मुझे मास ऑफ मून को डिवाइड करना पड़ेगा मास ऑफ अर्थ से, सो आई विल गेट दिस रेशियो ऑफ मास ऑफ मून इज टू मास ऑफ अर्थ, दैट इज 1/81। ओके, अब इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली रेडियस के बारे में भी रिलेशन दिया है। ओके, क्या दिया है कि रेडियस ऑफ द मून यानी कि rm इज इक्वल टू 1/3.7 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि re। ओके, ये दिया है। अगेन इफ यू वांट टू फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई देन इट विल बी रेडियस ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो इसको लिखेंगे हम, देयरफॉर क्या करना है, सिर्फ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन से re को यहां ला देना है, rm अपॉन re इक्वल्स टू 1/3.7। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। पहला केस जो दिया है, व्हेन द पर्सन, हमको एक केस, दो केसेस लेने हैं। पहला केस लेना है व्हेन द पर्सन इज ऑन द अर्थ। जब पर्सन अर्थ पे है तो उसका वजन ऑलरेडी दिया है 750 न्यूटन। तो केस 1 में लिखना when the person is on earth। okay, when the person is on the earth। अब अर्थ और पर्सन के बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो वी हैव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके हिसाब से क्या होता है, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 यानी कि मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 यानी कि मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब m1 यानी कि मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या लेने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट पर्सन किस पे, अर्थ पे है, तो दैट विल बी मास ऑफ अर्थ। सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है, पर्सन है जो खड़ा हुआ है, उसका मास हमने लिया है m, तो हम वहां पे लिखेंगे m एंड अपॉन r स्क्वायर यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। ओके, अब ये फोर्स किस पे है, फोर्स ऑन अर्थ है एंड फोर्स ऑन अर्थ इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 750 न्यूटन। Therefore 750 equals to G me m upon re का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम m के टर्म्स में बनाने वाले हैं। m के टर्म्स में यानी कि m को एक साइड पे रख देंगे और बाकी जितने भी चीजें हैं उनको दूसरे साइड पे लेके जाएंगे। ओके, अब ये क्यों करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। ओके, सो अभी m क्या बन जाएगा, therefore 750 ये re स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इनटू re स्क्वायर upon this G and MB will come down and that is equal to M। हमने इसको M के टर्म्स में इसलिए बनाया क्योंकि जो हम सेकंड केस लेने वाले हैं ऑन द मून का, उसमें भी मास जो है वो चेंज नहीं होने वाला है, बिकॉज मास डज नॉट चेंज विद लोकेशन। तो दो इक्वेशंस हमको M के टर्म्स में मिल जाएंगे तो हम उनको एक साथ इक्वेट कर पाएंगे और हमको आंसर मिल जाएगा, इसीलिए हमने M के टर्म्स में इसको लिखा हुआ है। चलो अब इसको लिख लेंगे, therefore M इक्वल्स टू, सिर्फ साइड चेंज कर रहा हूं, 750 into re का स्क्वायर अपॉन G m e। m is the mass of the earth। Now we will take the case 2, that is the second case। case 2 में क्या होने वाला है, when the person is on the moon। okay, when the person is on the moon, when the person is on the moon। चलो मून पे भी फॉर्मूला तो वही यूज होगा, दैट इज F इक्वल्स टू G mm अपॉन r स्क्वायर। अब Fe यानी कि फोर्स ऑन अर्थ लिया था, अब मैं Fm बोलूंगा, दैट इज फोर्स ऑन मून। फोर्स ऑन मून इज नथिंग बट द वेट ऑफ दैट पर्सन ऑन मून। आई हैव टोल्ड यू बिफोर आल्सो दैट फोर्स एंड वेट आर वन एंड द सेम थिंग। तो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं मून पे उस आदमी का, यानी कि हम उसका वेट कैलकुलेट कर रहे हैं मून के ऊपर। ओके, तो फोर्स ऑन मून का फॉर्मूला वही है, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब m1 क्या लेंगे हम, m1 यानी कि अभी पर्सन किस पे, मून पे, तो मास ऑफ मून लेंगे। ओके, अब वही इंसान है लेकिन मास इस पे मून पे खड़ा हुआ है, तो उसका मास तो सेम रहने वाला है, दैट इज स्मॉल m एंड अपॉन मून का रेडियस, क्योंकि अभी आदमी मून के ऊपर है, तो रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर। चलो अब ये इक्वेशन हमको मिल गया, इन दोनों को भी नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमको क्या करना है, हमको ये जो इक्वेशन में है
m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ओके, क्योंकि वैल्यू ऑफ m हमको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 4। तो मैं यहां लिखूंगा सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 4। ओके, इक्वेशन नंबर 4 में m की वैल्यू डाल देनी है। ओके, तो अब यहां पे सॉल्व करते हैं आगे उसको। m के जगह पे वैल्यू डाल देनी है। तो ये इक्वेशन फिर से लिख रहा हूं मैं, fm इक्वल्स टू g m, ये छोटा m है वो मास ऑफ द मून के लिए है, mm अपॉन rm का स्क्वायर। अब सिर्फ m के जगह पे हमको ये वैल्यू डालनी है, तो ध्यान से डालना है इसको। ये तो सब वैसे ही रहेगा, gmm अपॉन rm स्क्वायर, fm इक्वल्स टू gmm अपॉन rm का होल स्क्वायर इनटू m। अब m की वैल्यू डालनी है ये 750 इनटू re का स्क्वायर अपॉन gme। चलो कुछ कैंसिल आउट होता है, देखते हैं। g विल गेट कैंसिल आउट। ओके, अब देखो यहाँ पे मास ऑफ मून भी है और मास ऑफ अर्थ भी है, तो दोनों का रेशियो एक साइड ले लेते हैं और रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून को एक साइड पे ले लेते हैं, क्योंकि उनका रिलेशन हमको पहले दिया गया है। सो लेट अस डू दैट। देयरफॉर fm इक्वल्स टू, यानी फोर्स ऑन मून इक्वल्स टू mm अपॉन me, mm के नीचे ला लिया me इनटू re स्क्वायर के नीचे लाऊंगा rm स्क्वायर एंड इनटू बचा हुआ है 750। नाउ यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है, तो आई कैन पुट देम इन अ सिंगल ब्रैकेट एंड राइट इट डाउन, यानी कि mm अपॉन me इक्वल्स टू re अपॉन rm का होल स्क्वायर इनटू 750। चलो अभी कौन से रेशियो दिए हैं वो देखते हैं। mm अपॉन me ऑलरेडी है हमारे पास 1/81, तो mm अपॉन me की जगह लिख सकते हैं हम 1/81, क्योंकि इनका रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, अब है re अपॉन rm का होल स्क्वायर। ये ध्यान से देखो, re अपॉन rm का होल स्क्वायर हमको चाहिए। ओके, तो हमको चाहिए वैल्यू re अपॉन rm की, यहाँ पे है rm अपॉन re की वैल्यू है। तो अगर मुझे re अपॉन rm की वैल्यू चाहिए तो मुझे सिर्फ इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि देयरफॉर re अपॉन rm इक्वल्स टू 3.7 ऊपर चला जाएगा, 3.7 अपॉन 1, राइट। सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना है। तो अभी re अपॉन rm कितना आया, 3.7। तो ये हो गया 3.7 का होल स्क्वायर इनटू 750। चलो अभी इनको हमको सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करना है, डिवीजन अच्छे से करना है। पहले निकालेंगे 3.7 का होल स्क्वायर। चलो आराम से करना है। 3.7 इनटू 3.7, 7 7 is 49, 4 carry, 7 3 is 21, 21 plus 4 25, then 0, 3 7 is 21, 2 carry, 3 3 is 9 plus 2 11। तो कितना आ गया, 9, 5 plus 1 6, this is 3 and 1, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट्स, तो ये बन जाएगा 13.69। तो हमको मिला अभी 1/81 इनटू 13.69, ओके, एंड इनटू 750। चलो अभी क्या करते हैं, 13.69 को 750 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 13.69 मल्टीप्लाइड बाय 750। अब ये 0 से मल्टीप्लिकेशन सब जगह 0 हो जाएगा, देन एक 0 लगाएंगे। 5 9 are 45, 4 carry, 5 6 are 30, 30 plus 4 is 34, 3 carry, 5 3 are 15, 15 plus 3 is 18, 1 carry, 5 1 are 5 and 6। चलो अब 2 0 लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इससे 7 से। 7 9 are 63, then 6 carry, 7 6 are 42, 42 plus 6 is 48, then 4 carry, 7 3 are 21 plus 4 25, 2 carry, 7 1 are 7 plus 2 9। चलो इनको ऐड कर लेते हैं। 0 5 7, 8 plus 8 is 16, 1 carry, 6 plus 1 7, 7 plus 5 12, and this will become 1026750। और डेसिमल कितने के बाद आएगा, 2 डिजिट के बाद। ओके, सो दिस विल बी
10,267.50 डिवाइडेड बाय 81। ओके, चलो अभी इसको डिवाइड कर लेते हैं और आंसर क्या आता है वो देख लेते हैं। चलो थोड़ा सा रब कर देता हूं, यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी और दिखेगी। Now let us divide 10267 divided by 81। अब यहाँ पे जो है डेसिमल निकाल लेते हैं। ओके, अगर मैं डेसिमल निकालना चाहता हूं तो मैं नीचे कितने जीरो लगाऊंगा, 2 जीरो लगाऊंगा। तो ये डेसिमल निकाल दिया। अब डिजिट कितने थे, 2 डिजिट के बाद था डेसिमल फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे उतने ही जीरो में लगा दूंगा। अब ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हम डिवाइड करेंगे। चलो पहले और सिंप्लीफाई कर देते हैं। एंड में 5 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो देखो 5 2s are 10, अब 2 बीच में आया, 2 5 से डिवाइड नहीं होता है इसलिए 0। अब 26 है, 5 5s are 25, देन 17, 5 3s are 15 एंड 5 5s are 25। अब इसको भी 5 से डिवाइड करो, 5 1s are 5, 31, 5 6s are 30 एंड 5 2s are 10। ओके, अब देखो ये दोनों और किससे डिवाइड हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इनका एडिशन करो। 6 + 2 8, 8 + 1 9। जब एडिशन 3 के टेबल में जाता है, ओके, एडिशन 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। इनका एडिशन करो, 5 + 5 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15। 15 भी 3 के टेबल में जाता है, इसका मतलब दोनों भी नंबर 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे लिख दो 3 5s are 15, 3 4s are 12। ओके, यहाँ पे आएगा 3 6s are 18, 25, तो 3 8s are 24, फिर 13, तो 3 4s are 12 एंड 3 5s are 15। ओके, नाउ अब बचा है हमारे पास 6845 डिवाइडेड बाय 54। अब ये 3 में जाएगा क्या, 8 + 6 is 14, 14 + 4 is 18 एंड 18 + 5 is 23। 23 3 के टेबल में नहीं जाता है तो दिस कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 3। अब इसके आगे और ये कट नहीं होगा तो हम 6845 को डिवाइड करते हैं 54 से। 6845 डिवाइडेड बाय 54। अब यहाँ 68 लेंगे तो 54 बन जा 54। 8 में से 4 गया 4, 6 में से 5 गया 1। अब आएगा 144। अब 3 लेंगे तो 150 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा आएगा, इसलिए लेंगे 2। 2 4s are 8 एंड 2 5s are 10। बचा कितना, 40 में से 8 गया 6, यहाँ पे बचा 36। अब क्या आएगा नीचे 5। चलो अब कितना आएगा, 6 से लेंगे तो 300 होगा, 7 से लेंगे तो 7 4s are 28 एंड 378 होगा, तो हमको लेना पड़ेगा 6। 6 4s are 24, 2 कैरी, 6 5s are 30 + 2 32। कितना आया, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 2 गया 4। अब डिजिट खत्म हो गए तो यहाँ पे आएगा डेसिमल और यहाँ पे ले लेंगे एक 0। चलो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करके देखो। 8 4s are 32, 3 कैरी, 8 5s are 40, 40 + 3 is 43, 432 वो जाएगा नहीं तो लेंगे हम 7। ओके, तो 7 4s are is 28, 2 कैरी, 7 5s are is 35, 35 + 2 is 37। तो कितना आया, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे 0। अब और एक 0 लगा देंगे। जनरली हम 3 डिजिट तक निकालते हैं, मैं 2 डिजिट तक निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ओके, अभी क्या आएगा 54। अब ये 7 था तो 378 आया था, 6 से लेके देखेंगे, 6 4s are 24 एंड 320, 54। ओके, 320 डायरेक्टली हमको आंसर मिल जाएगा अगर हम 54 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 स्टार्ट, कहां स्टार्ट करना है, चलो यहाँ पे 320 आया है और 54 6 हमने किया था तो हमको मिल रहा था 324, यानी 6 भी नहीं ले पाएंगे, हम ले पाएंगे 5। 5 4s are 20, 2 कैरी, 5 5s are 25 एंड 27। चलो 2 डिजिट तक हमने आंसर निकाल लिया, तो दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन मून इक्वल्स टू 126.75 न्यूटन। यानी कि जिस इंसान का वजन अर्थ के ऊपर 750 न्यूटन था, उसी इंसान का वजन कितना है मून पे 126.75 न्यूटन। सो यहाँ पे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, देयरफॉर
वेट ऑफ द पर्सन ऑन मून इज 126.75 न्यूटन। क्या लिखना है? Therefore, weight of the person on moon is 126.75 न्यूटन। इसको राउंड अप करेंगे तो मिल जाएगा 126.8 न्यूटन। So this is the answer. Now let us solve the example on page number 12. An iron ball of mass 3 kg is released from a height of 125 meters and falls freely to the ground. Free fall का example है। Assuming that the value of g is 10 meters per second square, calculate first thing time taken by the ball to reach the ground, velocity of the ball on reaching the ground, height of the ball at half the time it takes to reach the ground. चलो एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला जो है क्या दिया हुआ है कि एक आयरन बॉल है। समझो इफ आई टेक एन आयरन बॉल एंड आई जस्ट ड्रॉप इट, तो आयरन बॉल को अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है, और जैसे जैसे वो नीचे गिरना चालू होता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो एन आयरन बॉल जिसका वजन है 3 kg, मास दिया है, मास इज 3 kg, इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर्स, यानी कि 125 मीटर की हाइट से उसको हमने ड्रॉप किया। एंड इट फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड। फ्री फॉल का मतलब क्या था? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, then it is called as a free fall. Free fall में A is equal to G, यानी कि equal to the gravitational force of Earth. Okay. और उसका तो gravitational acceleration already दिया है Earth का 10 meters per second square. Usually 9.8 ही रहता है, लेकिन for ease of calculation वो हमको दिया जाता है 10 meters per second square. चलो अब कैलकुलेट करना है time taken by the ball to reach the ground. So first thing, let us find out. First write down the given information. गिवन इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया है? आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg, तो m इक्वल्स टू 3 kg, यानी कि मास ऑफ द बॉल। इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर्स। डिस्टेंस दिया है एंड डिस्टेंस हम किससे लिखते हैं? s से। ओके, दैट इज 125 मीटर। एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड। फॉल्स फ्रीली है, फ्री फॉल का एग्जांपल है, एंड देयरफॉर a विल बी इक्वल टू g, एंड दैट इज गिवन एज 10 meters per second square. ओके, अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है? ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0. वी डोंट नो द फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। ओके, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, नीचे गिरने को, जमीन पे उसको टच करने को कितना टाइम लगेगा ऊपर से नीचे तक। ओके, तो अब वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, याद कर लो फिर से। v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब इसमें हमको टाइम निकालना है फर्स्ट। ओके, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, टू रीच द ग्राउंड। सो कौन सा इक्वेशन फिट हो जाएगा इसके लिए? चलो पहला देखते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at। ओके, अब यहाँ पे v जो है वी डोंट नो, u जो है हमको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g दिया है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम हमको निकालना है। ओके, तो टाइम भी नहीं मालूम और जो वेलोसिटी है वो भी नहीं मालूम, तो ये इक्वेशन हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो दूसरे पे मूव करते हैं। ओके, यहाँ पे s दिया है, हाँ दिया है, इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, ओके दैट इज 0, एंड हाफ at स्क्वायर, इसमें से a भी पता है। ओके, और हमको निकालना है 2, तो ये इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल है, तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सो वी विल राइट यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, a की जगह डालना है g। अब g निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, पहले वो ध्यान देना है उसमें। ओके, अब जो बॉल गिरने वाला है, ओके, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में ही गिरने वाला है। ओके, बॉल कैसे गिरेगा? ऐसे। ओके, और ये अर्थ है,
अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसको उसके तरफ ही खींचेगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ग्रेविटी हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, तो अब s की जगह डाल दो, s कितना है 125, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ, a की जगह g लेना है जो दिया है 10, ओके, एंड इंटू टी का स्क्वायर। ओके, टी स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, टाइम हमको फाइंड आउट करना है। इसको कैलकुलेट कर लो, ये 125, 0 इंटू 2 इज 0, ओके, तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, बचाइए। अब ये 2 5 जा 10, तो हमको क्या मिला 125 इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। तो टी स्क्वायर एक साइड पर रख देंगे तो 5 चला जाएगा 125 के नीचे, सो आई कैन राइट देयरफॉर टी स्क्वायर वहीं रख दिया, 5 चला जाएगा 125 के नीचे, तो 125 अपॉन 5। ओके, अब 125 5 के टेबल में जाता है, दैट इज 5 2s are 10 and 5 5s are 25, तो वी गेट देयरफॉर टी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। हमको टी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ टी चाहिए, तो वी विल हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 25, देयरफॉर टी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना आता है 5। ओके, तो टाइम कितना लग गया 5 सेकेंड्स। ओके, तो ये क्या निकाला हमने, फर्स्ट टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, यानी जब हमने बॉल को ऊपर से फेंका तो उसको जमीन पे जाने के लिए कितना टाइम लगा, इट टुक 5 सेकंड्स। चलो अब इसमें का सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। ओके, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अब बॉल ग्राउंड की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती जाएगी, तो जब रीच करेगा ग्राउंड पे तब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, तो वो हमको फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो लेट अस सॉल्व द सेकंड वन। What is it? Velocity of the ball on reaching the ground. Okay, second, velocity of ball on reaching the ground. On reaching the ground. So, पहला इक्वेशन था v equals to u plus 80. Okay, अब क्या यूज कर सकते हैं? Obviously यूज कर सकते हैं क्योंकि हमको टाइम मिल चुका है। तो यहां पे लिखेंगे from first equation of motion या न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ motion. From first equation of motion we get v equals to u plus at. Okay, अब ये फ्री फॉल का एग्जांपल है तो a की जगह g लेना पड़ेगा। Okay, we have to take g, तो u plus gt लिखना है आपको। Okay, so that is I can say v equals to u plus gt. चलो अब v हमको पता नहीं है, वही हमको फाइंड आउट करनी है उसका फाइनल वेलोसिटी, यानी जमीन से टकराने के पहले उसका कितना वेलोसिटी रहेगा। तो यहाँ पे u तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 और टाइम दिया है हमको सेकंड्स में, दैट इज 5। ओके, तो ये हो गया 5, देयरफॉर v कितना आ गया 10 into 5 दैट इज 50। अब वेलोसिटी है तो उसका यूनिट क्या आएगा, मीटर्स पर सेकेंड। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या होगी, जब नीचे जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी थी 50 मीटर्स पर सेकेंड। चलो अब थर्ड कैलकुलेट करते हैं। थर्ड में दिया है हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। इसको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको अच्छे से समझ लो। हाइट ऑफ द बॉल निकालना है, हाइट निकालना है। हाइट हमेशा नीचे से ऊपर गिनी जाती है, ऊपर से नीचे नहीं। ऊपर से नीचे हम गिनते हैं डेप्थ को, हाइट हमेशा नीचे से ऊपर गिनी जाती है। ओके, हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। अब टाइम टेकन फॉर द बॉल टू रीच द ग्राउंड इज 5 सेकेंड्स। उसका हाफ टाइम कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2.5 सेकेंड। पूरा टाइम बॉल को नीचे गिरने को कितना लगता है, 5 सेकेंड में बॉल नीचे गिर जाता है। तो इन्होंने पूछा है कि 2.5 सेकेंड्स के बाद उस बॉल की हाइट कितनी होगी, कितने हाइट पे वो बॉल होगा आफ्टर 2.5 सेकेंड। अब डायग्राम में देखो मैं कैसे बता रहा हूं। ये आयरन बॉल है, ये गिरेगा जमीन के ऊपर। ओके, दिस इज अर्थ। अब यहां से डिस्टेंस कितने हाइट पे था, उसको रखा हुआ था फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर्स। ओके, तो ये दूरी जो है इट इज 125 मीटर्स। ठीक है, बॉल और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है 125 मीटर्स। इस बॉल को नीचे गिरने के लिए कितना टाइम लगा, इट टुक 5 सेकेंड्स, यानी 5 सेकेंड बाद ये बॉल 125 मीटर की हाइट से नीचे गिर गया। ओके, अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉल, बॉल की हाइट कितनी रहेगी एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड।
टोटल टाइम टेकन इज 5 सेकेंड्स, हाफ द टाइम यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि होता है 2.5। तो अब पूछा है उन्होंने कि 2.5 सेकेंड्स के बाद ओके ये बॉल तो अब नीचे गिर रहा है, तो 2.5 सेकेंड्स के बाद ये बॉल की हाइट कितनी रहेगी फ्रॉम द अर्थ। ओके अब कंफ्यूजन कहां होता है कि हम 2.5 के बाद ये बॉल कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकाल लेंगे। ओके समझो 2.5 सेकंड के बाद बॉल यहाँ पे आया और हमने ये डिस्टेंस निकाल दिया और हम बता देंगे कि दैट इज द हाइट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हाइट हम यहां से नहीं मेजर करेंगे, हाइट हम नीचे से ऊपर मेजर करेंगे। ये अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके चलो अभी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे टाइम दिया है 2.5 सेकेंड्स। ओके थर्ड का पहले टाइटल दे देते हैं, हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम, height of the ball at half the time it takes to reach the ground. Okay, it takes to reach the ground, it takes to reach the ground. चलो तो पहले क्या निकालना पड़ेगा कि 2.5 सेकेंड्स में बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2.5 सेकेंड्स में बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। Total time taken by the ball was total time taken to fall down. Okay, total time taken to fall down by the ball was equal to 5 seconds. Okay, total time taken was 5 seconds. Okay, अब half the time क्या हो जाएगा, therefore half the time मैंने उसका आधा equals to 5/2 यानी कि 2.5 सेकेंड्स। तो अभी टाइम कितना हो गया 2.5 सेकेंड। तो अभी 2.5 सेकेंड्स में ये बॉल नीचे कितना गिरेगा ये हमको पहले फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स और अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ए यानी कि यहाँ पे g लेना है और g की वैल्यू हमको दी है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो s हो जाएगा u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, बॉल नीचे गिरने वाला है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे लिख दो 0 इंटू t की वैल्यू कितनी थी अभी 2.5 प्लस हाफ g की वैल्यू है 10 एंड इंटू 2.5 का होल स्क्वायर। ओके अब 2.5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आने वाला है, तो बचा कितना अभी हाफ इंटू 10 इंटू 2.5 का स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो सकता है, 2 5 जा 10। अब 25 का स्क्वायर अगर आपको पता होगा तो इट इज 625, तो मुझे पता है तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा इक्वल्स टू 5 इंटू 625, लेकिन ये 2.5 है यानी कि 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, तो आंसर में डेसिमल 2 डिजिट के बाद आएगा यानी कि 6.25। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, s इक्वल्स टू 5 5 25, 2 कैरी 5 2 10, 11 12, 1 कैरी 5 6 30 एंड 31। ओके और डेसिमल आएगा 2 डिजिट के बाद, यानी s कितना हो गया अभी 31.25 मीटर्स। ओके यानी कि आफ्टर 2.5 सेकेंड्स बॉल कितना नीचे गया 31.25 मीटर्स, यानी बॉल ने डिस्टेंस कवर किया। समझो 2.5 सेकंड के बाद बॉल यहां पे था और ये डिस्टेंस हो गया 31.25 मीटर्स। ओके अब बॉल यहां पे है, अब हमको फाइंड आउट करना है द हाइट ऑफ द बॉल, और हाइट ऑफ द बॉल हमेशा ग्राउंड से ली जाती है। ओके तो हमको एक्चुअली निकालना क्या है, हमको ये डिस्टेंस निकालना है ओके फ्रॉम द ग्राउंड। हाइट कितना है बॉल का, टोटल हाइट कितनी है 125 में से 31.25 निकाल दोगे तो यू विल गेट द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। ओके सो यहां पे लिखूंगा देयरफॉर हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम द ग्राउंड इक्वल्स टू 125 माइनस 31.25। 31.25 यहां है, बॉल नीचे गिर रहा है, उसने 2.5 के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बॉल की पोजीशन यहां पे है तो उसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है। ओके तो दैट विल बी ये टोटल डिस्टेंस 125 माइनस 31.25। चलो 125 माइनस 31.25
कितना आ जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 12 में से 3 गया 9, that is 93.75 meters. So this is the height of the ball from the ground. Now let us solve the example on page number 12. A tennis ball is thrown up and reaches a height of 4.05 meters before coming down. What was its initial velocity? Initial velocity कितनी है? How much total time will it take to come down? Okay, total time कितना लेगा वो नीचे आने के लिए? And assume g equals to 10 meters per second. क्या दिया है? एक टेनिस बॉल है. Okay, यहाँ पे डायग्राम निकालता हूँ. ये समझो ग्राउंड है. Okay, this is earth. Now a ball is thrown up and it reaches a height of 4.05 meters. ये टेनिस का बॉल है. Okay, और उसने जो हाइट अचीव की है that is 4.05 meters before coming down. यानी कि बॉल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी से हम फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी कम होते जाएगी और वो ये पोजीशन पे आके रुकेगा और फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा. तो जो मैक्सिमम हाइट उसने अचीव की है दैट इज 4.05 मीटर्स. व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? पहला निकालना है उसकी इनिशियल वेलोसिटी. एंड हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन. ओके, टोटल टाइम टू कम डाउन का मतलब होता है कि बॉल नीचे से ऊपर जाके ऊपर से नीचे आने को टोटल टाइम हम करेंगे. यानी ऊपर जाने को जितना टाइम लगता है और नीचे जाने को जितना टाइम लगता है वो दोनों का एडिशन हो जाएगा टोटल टाइम टू कम डाउन. चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं. पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लो. गिवन क्या है? हाइट ऑफ 4.05 मीटर्स. हाइट यानी कि डिस्टेंस यानी कि s. s इज 4.05 मीटर्स. ओके, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? तो u हमको फाइंड आउट करना है. और क्या हमको v पता है? ऑब्वियसली बॉल हम इनिशियल वेलोसिटी से फेंकने वाले हैं क्योंकि अगर उसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं देंगे तो बॉल ऊपर ही नहीं जाएगा. तो ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी. लेकिन जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचता रहेगा. तो एक स्टेज के बाद बॉल रुक जाएगा. ओके, यानी कि उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0. और जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा उसके बाद बॉल फिर से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा. तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी वो है 0 और हमको फाइंड आउट करना है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज गिवन टू द बॉल. अब अगेन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपको अभी तक याद हो गए होंगे. दैट इज फर्स्ट इज v इक्वल्स टू u प्लस at. लेकिन उसमें टाइम का जिक्र हुआ है, हमारे पास टाइम नहीं है तो पहला इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते. सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. उसमें भी टाइम है तो टाइम यहाँ पे दिया नहीं है तो हम सेकेंड इक्वेशन भी नहीं यूज कर सकते. अब बचा हुआ इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax. चलो देखते हैं ये यूज कर सकते क्या. फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax. v यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो हमको पता है 0 है. u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो हमको ढूंढ के निकालनी है. ओके, एंड 2 टाइम्स a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और s भी हमको दिया है 4.05. ओके, तो हम ये ले सकते हैं. अभी एक चीज यहाँ पे याद रखना है जो तुमको कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अब वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा. ओके, अब बॉल जा रहा है ऊपर की तरफ तो बॉल का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा. और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ खींचेगा उसको? नीचे की तरफ. तो दोनों का डायरेक्शन जब अपोजिट रहता है तो g हमको लेना पड़ता है नेगेटिव. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a इक्वल्स टू माइनस g इक्वल्स टू माइनस 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो a की जगह डालेंगे माइनस g दैट इज माइनस 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो इक्वेशन क्या बनेगा? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर. ओके, प्लस 2 a की जगह माइनस g एंड s. तो इक्वेशन बन गया v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इज माइनस तो माइनस 2gs. चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं. फाइनल वेलोसिटी इज 0 तो v की जगह आएगा 0 का स्क्वायर यानी 0. u स्क्वायर यानी कि u की वैल्यू निकालनी है तो u स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस 2 इंटू g. g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड.
स्क्वायर। ओके, तो आ जाएगा 10 माइनस हम पहले ही ले चुके हैं। ओके, इसलिए -10 फिर से मत डाल देना। ओके, तो ये बन गया -2 इंटू 10 इंटू एस इज 4.05। अब यू स्क्वायर निकालना है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे देंगे तो वो बनेगा -u स्क्वायर। और बचा क्या? अब देखो -2 इंटू 10 इज -20 इंटू 4.05। अब ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में 0 ऐड कर देंगे। -u स्क्वायर इक्वल्स टू साइन माइनस ही रहने वाली है, 2 इंटू 5 10, 1 कैरी, 2 0 0 1 एंड 2 4 8 और ये 0 ऐड करना है लास्ट में। चलो अभी आ गया 8100, लेकिन डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट्स, तो ये कितना आ गया 81। अब दोनों जगह माइनस साइन है तो दोनों माइनस साइन हो जाएंगे कैंसिल एंड यू गेट u स्क्वायर इक्वल्स टू 81। हमको चाहिए u, तो आगे वाले का निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट एंड देयरफॉर u इक्वल्स टू 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई 9 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब जो बॉल हमने फेंका था वो कौन से वेलोसिटी से फेंका था? 9 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका था। तो उसने कितनी हाइट अचीव की वो वेलोसिटी पे? 4.05 मीटर्स हाइट अचीव की। ओके, अब ये इंफॉर्मेशन हमको मिल गया। अब हमको निकालना है टोटल टाइम टेकन टू कम डाउन, यानी कि पहले टाइम टेकन टू गो अप एंड देन द टाइम टेकन टू कम डाउन। ओके, यहाँ पे हमने अभी लिया था कि बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमको एक चीज याद से लिखनी है जो मैं भूल गया हूँ यहाँ पे। ओके, व्हेन द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन आएगा वो है व्हेन द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ओके, अब सेकेंड कंडीशन क्या आएगा? व्हेन द बॉल इज गोइंग टू फॉल डाउन। ओके, अब सेकेंड कंडीशन व्हेन द बॉल फॉल्स डाउन। ओके, when the ball falls down। चलो अभी बॉल नीचे गिरने वाला है, ठीक है। अगर बॉल नीचे गिरने वाला है तो अभी यहां से शुरू होगा। यहां पे जब बॉल आया था तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी, लेकिन अब कंडीशन दूसरा है। अभी बॉल यहां पे है और फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाने वाली नीचे। ओके, तो इस पॉइंट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। याद रखना है बॉल नीचे गिर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। तो यहां पे आएगा u इक्वल्स टू 0। ओके, अब वो नीचे जाएगा, राइट, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमको पता है क्या? नहीं, उसकी फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम हमको। ओके, डिस्टेंस कवर्ड कितना है s, वो तो हमको पता है कि नीचे जाने के ऊपर जितना डिस्टेंस पे था, ये कितना डिस्टेंस था 4.05 मीटर। तो नीचे जब गिरेगा तो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि 4.05 मीटर्स। ओके, अब हमको निकालना है टाइम टेकन टू फॉल डाउन। ओके, टाइम टेकन टू फॉल डाउन यानी टी आना चाहिए उसमें। पहला इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ओके, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो v हमको पता नहीं है और हमको t भी नहीं पता। ओके, तो हम फर्स्ट इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। ओके, देन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पता है। ओके, इसमें से u जो है वो भी पता है और s भी हमको पता है, तो वी कैन यूज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी कैन राइट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए के जगह क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे a के जगह हो जाएगा g। अब क्या प्लस जी की माइनस जी, बॉल नीचे गिर रहा है तो उसका जो डायरेक्शन है इट इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है तो जी पॉजिटिव होता है। अब ऊपर जब हम फेंकते हैं तो बॉल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहता है, ग्रेविटी उसको नीचे पुल करते रहता है, तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन रहता है, तब लेते हैं हम नेगेटिव। चलो अब वैल्यूज पुट करेंगे। s कितना है 4.05 मीटर्स, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अब 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो मैं लिखता नहीं हूं यहाँ पे, और बचेगा क्या? चलो लिख देता हूं फिर भी, 0 प्लस हाफ। g की वैल्यू कितनी है हमारी? g की वैल्यू है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू टी स्क्वायर। ओके, अब कैलकुलेट कर लो 4.05
ये 2 5 10 कट हो जाएगा, तो ये बनेगा 5t स्क्वायर। ओके, अब टी स्क्वायर क्या बनेगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4.05 अपॉन 5। ओके, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4.05 अपॉन 5। तो t विल बी इक्वल टू व्हाट, पहले इसका डेसिमल निकाल लेते हैं, तो ये बनेगा 405 अपॉन 500। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 एंड 5 10 जा 50, दैट इज 81 अपॉन 100। अब 81 अपॉन 100 आ गया, बट टी स्क्वायर, ओके, टी स्क्वायर इक्वल्स टू, नाउ टी स्क्वायर इक्वल्स टू 81 अपॉन 100। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है दोनों भी? यस, दे आर परफेक्ट स्क्वायर। 81 का स्क्वायर रूट 9 और 100 का स्क्वायर रूट 10, तो देयरफॉर t will be equal to square root of this. अब square root of 81 is 9 and square root of 100 is 10. Okay, so time कितना हो गया, therefore t equals to 10, 9 को 10 से डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली ये बनेगा 0.9 सेकेंड्स। लेकिन आंसर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, दिस इज द टाइम टेकन टू कम डाउन। लेकिन हमने पहले भी देखा है कि टाइम टेकन टू गो अप, टाइम टेकन टू गो अप इज द सेम टाइम टेकन टू फॉल डाउन। ओके, यानी ऊपर जाने को जितना समय लगता है बॉल को, उतना ही समय नीचे जाने को लगता है। ओके, सो टोटल टाइम टेकन equals to time taken to go up plus time taken to fall down, time taken to go down or fall down. Okay, so ये कितना हो जाएगा फिर, that is 0.9 नीचे गिरने को, तो ऊपर जाने को भी 0.9, यानी कि ये हो जाएगा 9 plus 9 is 18, so this will be 1.8 seconds. Okay, तो ये था टाइम टेकन बाय द बॉल टू गो अप एंड टू कम डाउन, यानी टोटल टाइम टेकन फॉर द बॉल टू कम डाउन। ओके, तो कम डाउन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ऊपर से नीचे आने वाला है, उसका मतलब होता है कि नीचे से ऊपर जाने को जितना समय लगता है और ऊपर से नीचे आने को जितना समय लगता है, उनका एडिशन। ओके, तो यहाँ पे हमने निकाला इनिशियल वेलोसिटी और टाइम निकाला कितना लगेगा। Now let us see the last example on page number 14. Calculate the escape velocity on the surface of the moon given the mass and radius of the moon to be 7.34 into 10 to the power 22 kg and 1.74 into 10 to the power 6 meters. क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ मून और मास ऑफ द मून दिया हुआ है। ओके, हमको फाइंड आउट करना है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या रहती है, द मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच एन ऑब्जेक्ट शुड बी लॉन्च so that it escapes the force of gravitation and does not return back। यानी कि मून पे से हम किसी चीज को लॉन्च करेंगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करके आगे चला जाए और मून पे वापस ना आए। ओके, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, √2gm अपॉन r। चलो इसको सीधा सीधा सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो पहले लिखेंगे गिवन थिंग्स, गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, तो पहला है रेडियस ऑफ द मून, तो रेडियस ऑफ द मून को r लेंगे, दैट इज 7.34 into 10 to the power, सॉरी दैट इज kg। रेडियस कितना है 1.74 into 10 to the power 6 meters एंड देन मास ऑफ द मून। ओके, तो इसको लेंगे m, दैट इज 7.34 into 10 to the power 22 kg। चलो अभी g की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g की वैल्यू कितनी रहती है, 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। क्या निकालना है हमको, एस्केप वेलोसिटी निकालना है। ओके, एस्केप वेलोसिटी इज गिवन बाय VEC। ओके, VEST यानी कि एस्केप वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू √2gm अपॉन r। यहाँ पे g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज मास ऑफ द मून एंड r इज द रेडियस ऑफ द मून। चलो अब इसको सीधे सीधे वैल्यूज डाल के सॉल्व करना है। अब 6 की वैल्यू है 6.67 into 10 to the power -11, then into mass of the moon that is given as 7.34
into 10 to the power 22. Okay, and upon radius of the moon, that is given as 1.74 into 10 to the power 6 meters. ओके, ये कैलकुलेशन देख के तो मुझे भी चक्कर आ जाएगा, लेकिन चलो सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है। पहले मैंने बताया था क्या करना है, 10 के जो नंबर्स है वो एक साथ लेने हैं, पहला स्टेप वही करना है। ओके, तो पहले 2 लिख दूंगा, फिर इंटू 6.67 इंटू 7.34 और बाद में 10 की वैल्यूज, दैट इज 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 22 एंड अपॉन 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6। चलो, अब मैंने बोला था कि व्हेन यू मल्टीप्लाई द पावर्स गेट एडेड। ओके, तो यहाँ पे रफ में मैं करके दिखाऊंगा, पावर्स गेट एडेड। यहाँ पे दिया है 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 22। पावर्स विल गेट एडेड व्हेन यू मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 10 टू द पावर -11 प्लस 22। तो 22 में से 11 माइनस करेंगे तो फिर से 11 आएगा और पॉजिटिव साइन आएगी क्योंकि बड़े नंबर की साइन पॉजिटिव है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 10 टू द पावर 11। तो फिर से लिख देंगे अंडर रूट 2 इंटू 6.67 इंटू 7.34 इंटू 10 टू द पावर कितना आया 11 अपॉन 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, अब 10 टू द पावर 11 है डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 है, 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6। व्हेन यू डिवाइड द पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, तो ये बनेगा 10 टू द पावर 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 इज 5, तो ये बनेगा 10 टू द पावर 5। तो हमने 10 के पहले सॉल्व कर लिए, तो ये अब क्या आएगा, 2 इंटू 6.67 इंटू 7.34 इंटू, ये दोनों को सॉल्व करने के बाद हमको मिला 10 टू द पावर 5, तो यहां लिख दो 10 टू द पावर 5। अब बचा सिर्फ 1.7। अब पूरे कैलकुलेशंस के काम है, मैं फिर से रिपीट यहां पे एक बार लिख देता हूं, दैट इज v escape इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 6.67 2 इंटू 6.67 इंटू 7.34 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 1.7। चलो इसको कैलकुलेट, पहले ये नंबर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले करेंगे 6.67 इंटू 2, तो 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 7 are 14, 1 carry, 2 6 are 12 plus 1 13, 1 carry, 2 6 are 12 plus 1 13, यानी कि 2 इंटू 6.67 आया 1334। अब 1334 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 7.34 इंटू 7.34, 4 4s are 16, 1 carry, 4 3s are 12 plus 1 13, 1 carry, 4 3s are 12 plus 1 13, 1 carry, 4 1s are 4 plus 1 5। ओके, अब आएगा 0, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 4s are 12, 3 3s are 9 plus 1 10, 3 3s are 9 plus 1 10 and 3 1s are 3 plus 1 4। अब आएंगे 2 zeros, 7 4s are 28, 2 carry, 7 3s are 21 plus 2 23, 2 carry, 7 3s are 21 plus 2 23, 2 carry, 7 1s are 7 plus 2 9। Now let us add all these, 6, 3 plus 2 5, 8 plus 3 11, 1 carry, ये हो गया 9, ये हो गया 7 और ये हो गया 979 156। अब डेसिमल कितने के बाद, यहाँ पे देखो 13 34 था तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद था। ओके, तो अभी यहाँ पे 2 डिजिट के बाद, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद, तो हो जाएंगे टोटल 4 डिजिट्स के बाद, यानी कि 1 2 3 4। चलो इसको अभी राउंड ऑफ कर देते हैं। अभी हम इसको 2 डिजिट तक रखेंगे, अगर थर्ड डिजिट 5 या 5 से बड़ा रहा तो उसके पहले वाला डिजिट 1 से बढ़ जाता है, यानी ये बनेगा 97.92। तो v escape इक्वल्स टू अंडर रूट, ये मल्टीप्लिकेशन पूरा हो गया 97.92 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 1.74। अब ये दोनों को डिवाइड कर लेते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट के पहले, यहाँ पे भी 2 डिजिट के पहले, तो दोनों के डेसिमल ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे और बनेगा 9792 अपॉन 174 इंटू 10 टू द पावर 5। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करना है हमको। तो 9792
2 डिवाइडेड बाय 174। इसको बाहर सिंप्लीफाई करते हैं, 9792 डिवाइडेड बाय 174। पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 के टेबल में जाएंगे कि दोनों लास्ट के दो डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल रहता है। अब लास्ट के दो डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखो, 4 2 8, 4 3 12। ओके, लास्ट के दो डिजिट 4 से डिविजिबल है। यहाँ पे 4 1 4, तो 3 बचेंगे 34, तो ये वाला 4 से डिविजिबल नहीं, हम 2 से करेंगे। 2 4 8, 2 8 16, 2 9 18, 2 6 12, and 2 8 16 and 2 7 14। चलो अब 4 8 9 6 को 87 से डिवाइड करते हैं। 4 8 9 6 को डिवाइड करेंगे 87 से। 4 5 5 लेके देखते हैं। चलो 6 भी लेके देखेंगे। 87 into 6, 6 7 42, 4 कैरी, 6 8 48, 48 plus 4 is 15। ये नहीं जाएगा तो लेंगे 5, 5 7 35, 3 कैरी, 5 8 40 plus 3 43। 9 में से 5 गया 4, 8 में से 3 गया 5, अब बचा 6। चलो यहाँ 522 आ गया था 87 into 6, तो यहाँ पे भी लेंगे 6 और मिलेगा 522। तो कितना आया? 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2। अब डेसिमल खत्म, डिजिट खत्म, तो आ जाएगा डेसिमल और इसके आ जाएगा 0। 3 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 2 लेके देखते हैं। 2 7 14, 1 कैरी, 2 8 16 plus 1 17। 10 में से 4 गए 6, देन 13 में से 7 गए 6 और ये हो गया 0। तो अब मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, अप्रॉक्स कितना आ गया? 56.2 आ गया। ओके, तो हम यहाँ पे ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू 56.2 into 10 to the power 5। ओके, अब अगर मुझे इसका डेसिमल निकालना है, ठीक है, अगर मुझे इसका डेसिमल निकालना है तो मुझे डेसिमल यानी कि आगे लेके जाना है, राइट हैंड साइड पे। हमने देखा था अगर डेसिमल को राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो कितने से लेके जा रहे हैं? यानी कि डेसिमल निकाल दे रहे हैं, यानी कि एक डिजिट से उसको आगे कर रहे हैं। तो इट विल बिकम 562 into 10 to the power 4। 5 में से एक निकाल देंगे क्योंकि एक डिजिट से हमने डेसिमल को आगे निकाल दिया। ओके, अब एक चीज बहुत सिंपल है, 10 to the power 4 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, 10 to the power 4 किसका स्क्वायर है? ऑब्वियसली 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी 10 to the power 4। तो 10 to the power 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? इट विल बी 10 to the power 2। तो 10 to the power 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा एंड रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 562। अब 562 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना ये आना चाहिए। चलो अभी देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 562। We have to find out the square root of 562। जिन्होंने मैथ्स पहले स्टैंडर्ड्स में अच्छे से किया है तो उनको ये अच्छे से आ जाएगा। 562 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? पहले राइट से दो डिजिट के बाद कॉमा दे देने का। अब 5 को डिवाइड करना है लेकिन ऐसे नंबर से जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 1 1 जा 1 या फिर 2 2 जा 4। 1 1 जा 1 छोटा हो जाएगा, 2 2 जा 4 बराबर हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। 9 5 से ज्यादा है इसलिए वो नहीं लिख पाएंगे। तो कितना आ जाएगा? अब जिससे मल्टीप्लाई किया है वही इसमें ऐड कर देना है, यानी 2 + 2 दैट इज 4। अब 5 में से 4 गया 1, अब दो डिजिट को एक साथ लाना है 162। अब 162 को इससे डिवाइड करना है, लेकिन पहले इसके आगे एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिस नंबर से ही इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर मैं 4 के आगे 2 लिखता हूं तो मुझे 42 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 43 के 3 लिखता हूं तो मुझे 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। 43 into 3 129। अगर मैं 4 लिखता हूं तो 44 into 4 176। ये ज्यादा हो जाएगा तो अभी ये बेटर है 43 into 3। तो 43 into 3 इज कितना आया था? 129। तो 10 12 में से 9 गए 3, 5 में से 2 गए 3, सॉरी हाँ 5 में से 2 गए 3। अब इससे डिवाइड किया था तो इसमें
कितना मल्टीप्लाई किया था तो इसमें ऐड हो जाएंगे 3, दैट विल बी 46। अब डिजिट खत्म हो गए, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, और इसके बाद जो जीरो लगाते हैं वो हमेशा पेयर्स में जीरो लेते हैं, ओके, इन पेयर्स। तो इतना दूर तक मैं जाऊंगा नहीं, अभी मैं सिर्फ यहां तक ही सॉल्व करने वाला हूं, आगे आपको सॉल्व करना है उसको, ओके। तो ये बन गया 10 स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 562 अप्रोक्सीमेटली मैं लूंगा इनटू 23, ओके। अब 23 और 10 स्क्वायर क्या होता है 100, तो 100 इंटू 23 इज 2300। अब ये वैल्यूज किस पे थे, सब है मीटर्स में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मीटर्स पर सेकेंड, ओके। अगर इसको किलोमीटर्स पर सेकेंड में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000, ओके। तो अभी एस्केप वेलोसिटी इन मीटर्स इज 2300 मीटर्स पर सेकेंड अप्रॉक्स, एंड वी एस्केप इक्वल्स टू 2300 अपॉन 1000 किलोमीटर्स पर सेकेंड, ओके। अब ये मीटर्स था, इसको 1000 से डिवाइड किया तो वो हो जाएगा किलोमीटर्स, तो कितना आएगा डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट्स, यानी कि 2.3 किलोमीटर्स पर सेकेंड। सो एस्केप वेलोसिटी फॉर मून इज अप्रोक्सीमेटली 2.3 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो इस प्रॉब्लम में फॉर्मूला याद रखना है ऑफ एस्केप वेलोसिटी, दैट इज अंडर रूट 2gm अपॉन r, और कैलकुलेशन को ठंडे दिमाग से करना है, ओके, वेरी कामली और क्वाइटली करना है, तो अपने आप आंसर आ जाए।